literary giants, remembering Munshi Premchand ji. Today, we gather not just to remember a name, but to celebrate the timeless words and the profound narratives and the enduring spirit that Munshi Premchand ji has gifted to the world. I would like to call upon the dais Sara Rai ji and Dr. Seema Raizada ji. Can we welcome them with a huge round of applause? Sara Rai ji, an Allahabad-based writer, literary translator and editor, has an impressive literary portfolio. She has authored 4 collections of short stories and an Hindi novel. She has gotten multiple achievements and awards for her writings, both for original as well as the translated versions. Adding another feather to her literary cap, Sara Rai ji has recently penned her memoir, Raw Amber. In conversation with her, we have Seema Raizada ji. Dr. Seema Raizada holds esteemed position of the Professor of English at Maharani Lakshmi Bai Government Girls Postgraduate College in Bhopal. She is the visionary founder of Club Literati, an exclusive platform for literature enthusiasts like all of us present here today. Dr. Raizada dons the mantle of Editor-in-Chief for InkPad. A trailblazer in cultural initiatives, Dr. Seema Raizada initiated the Shakespeare Festival in 2013, showcasing her directorial knowledge in performances at Bharat Bhavan and the Tribal Museum. So, join us as we traverse the literary landscape painted by Munshi Premchand ji, reminiscing about the characters that became champions and stories that became timeless. Let us collectively remember, honor, and be inspired of this literary genius of Indian literature. Over to you, ma'am. Thank you. Welcome to this afternoon where we have with us Sara Rai. And believe me, when I came to know that I would be in conversation with Sara, there was a sense of awe. There was so much curiosity to know what she has written in this book, this memoir, Raw Amber. And I was curious to know about so many things that all of us would like to know about a person larger than life, and of course the author, none other than the granddaughter of Munshi Premchand. As I read the preface, some of my curiosity, of course, started settling down. But yes, as I proceeded to read the rest of the book, it was like a guided tour, let me tell you. It is so very sparkingly guided and written, Saraji, and I must congratulate you for that. The chapters, they are well divided and given a very balanced nature, I would say. A family full of legends, a family that has got the attention of the literature worldwide. And Sara has contributed to it by being, of course, she is an editor, she is a translator, she is a writer. And this book, Raw Amber, the memoir, is the first original work in English. So Sara, welcome to this festival, and we are privileged to have you here. My
I'm so happy to be here. I've been to Bhopal a couple of times before, as I was telling Seema, but not for a very long time. So I really love this city. It's such a beautiful city. I would like to keep coming back, but I mean, somehow it's been so many years since I was here last. So it's really my pleasure to be here. Privilege all ours, Sarah. And my question to you to begin this conversation is, what started writing about your family, the memoir? How did it start? And if you don't mind, I'll quote from what you have written about the, shifting to this genre, which is memoir. She says about this, because she writes fiction, she writes short stories. She says she paid the price of being a fiction writer, and then she adds, remembering is also a way of imagining. So, Sarah, आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि मेमोयर जो हम लोग सोचते हैं एक जीवन के सभी तथ्यों पे बेस्ड होगा, उसको आपने अपने फिक्शन से कहाँ तक प्रभावित होने दिया? Fiction भी memory से ही आता है. It's not as if fiction comes from nowhere. I mean, fiction is also created out of the same memories that you have, and the same memories are going into the memoir also. There's a difference, I think, between memoir and autobiography, which deals more with the chronological events and how things take place in the real world. Memoir is also what goes on in the person who's writing it. Their imagination also comes into it. So I was trying to... So I hope this is better. Am I audible? So as I was saying, there's a difference between autobiography and memoir. And in a memoir, you sort of let your imagination also play. I mean, you remember things. And the act of remembering is also a very strange thing, because you think you are remembering something, and it may just be something that you have been told, you have heard, and you have somehow imagined that this has happened, and you... Yeah. So that's also how it happens, that you remember many things and you think that you remember many things. So there's a crucial line in between that. And when you're writing your memories, at some point, some things that may not actually have happened, you think that they've happened and you remember them. So that is what I meant in that little line about dividing line. So Sarah, let me share with you. Can I get someone please tell the crowd there not to keep this, this buzzing sound is constantly distracting us. Volunteers, please. Let me share with you, Sarah, जब अपनी किताब में पीछे जाती हैं, अपने स्कूल के समय में जाती हैं, कॉलेज के समय में जाती हैं, घर के बारे में बात करती हैं, उन्होंने इतनी छोटी छोटी बातें, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे आयोडेक्स हुआ, some such articles which we use, and those articles that were used, way back about 40-50 years ago, a long time ago. The kind of, the brand of the oven is also mentioned. तो एक बहुत ही खास बात जो लगती है, and that I think gives a very special flavor to the whole book. Now coming to this very very pertinent question, Sarah ji, और आपसे हमेशा ये लोग ये बात पूछते भी होंगे. It is like almost बहुत repetition लगता होगा इसमें. You come from the family full of legends. If I may say, it's overloaded with legends. Dhanpat Rai Srivastav, Premchand, Shivrani Devi, Yes. Shripad Rai. Guilty. Yes, and yes, he used the word guilty. I mean, she has put it in such a beautiful way. If you permit, I will also read those lines. And of course, Zara, your mother. All writers, great caliber. You see, and their thoughts which she has put in these chapters. तो एक जो बात आपने, और फिर मैं आपकी लाइन, because I find her line so apt कि मैं अगर खुद अपने शब्दों में कहूँगी शायद उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो मैं उनको कोट करना ज़्यादा उचित समझूंगी. तो इन्होंने इस विषय में ये कहा है, क्योंकि ये बर्डन तो उनको
लगता होगा, और मैंने जब सारा से पहली बार बात की थी, मैंने कहा दिस मस्ट बी अ वेरी स्वीट बर्डन, दिस इज अ वेरी हैप्पी बर्डन, यू नो, एज I wanted to put it. So what she writes here is, the extreme reverence with which our family was met left in me a confused mix of pride, embarrassment and guilt. For what had we ourselves done to deserve this attention? And she goes to the extent of saying that कि जब भी वो बाहर निकलती थी तो रिक्शा वाले ने प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ी होती थी, दूध वाले ने पढ़ी होती थी, और भी शॉपकीपर ने पढ़ी होती थी, साइकिलिस्ट ने पढ़ी होती थी. So without having read the story sometimes herself, she says that I had somehow inhaled his writing. So this I found, beautifully put. सारा जी, इस विषय पे, कमिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ लेजेंड्स, आपका पूरा क्या, आप लोग हमसे क्या शेयर करना चाहेंगी? इसमें बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप कह रही हैं, बचपन से ही मुझे बहुत ये एहसास था कि मेरे दादा बहुत बड़े लेखक थे, और कहीं भी जाओ, जैसा कि आपने कहा कि लोग सबको याद रहता था. एक दुकान में मैं गई तो कुछ पता चल गया, स्टेशनरी की दुकान थी, तो कुछ पेंसिल क्या लेने के लिए गई थी, तो उनको पता चल गया कि मैं कौन हूँ. तो उन्होंने फ़ौरन एक लंबे से 2, 3, 4 पैराग्राफ्स पूरी कहानी के, प्रेमचंद की कहानी के, उनको वर्बैटिम याद थे, उन्होंने पूरा रिसाइट कर दिया. और फिर इस तरह से कहीं हम इलाहाबाद से बनारस जाया कर, अभी भी जाते हैं, तो रास्ते में गोपीगंज पर हम चाय के लिए रुके, एक छोटी सी दुकान थी चाय की, वहाँ पर एक साइकिल पर एक आदमी और आया, वो भी चाय ले रहा था. उसको पता नहीं कैसे पता चला, तो उसने भी मतलब क्या क्या पढ़ा हुआ था सब, मतलब जैसे कि कॉमन मैन, जो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द कॉमन मैन ऑन टू द लिटरेरी स्टेज. इसके पहले कुछ नहीं था, मतलब फैंटेसीज लिखते थे लोग, लव स्टोरीज हैं जो बहुत ही मतलब उस तरह की प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस की कहानियाँ हैं, उस तरह की है कि समझिए कि फैंटेसी वाली कहानियाँ ज़्यादा थीं. तो वो पहली बार जो हिंदी और उर्दू दोनों में उन्होंने लिटरेरी स्टेज पर कॉमन आदमी को लाया. हाँ, वो लेके आए, उनके बारे में लिखा, और लोगों में इसलिए उनके प्रति इतना आदर भी है कि उन्होंने उनकी कहानियाँ, दे फाउंड देयर स्टोरीज वर्थ टेलिंग. नहीं तो अभी तक तो कोई किसी को सूझा नहीं था कि ये आदमी जो सड़क पे जा रहा है, इसकी भी कोई कहानी हो सकती है. तो ही ब्रॉट देम इनटू लिटरेरी प्रोमिनेंस. एक प्रेमचंद जी के फटे जूते के बारे में भी कुछ बताइए. फटे जूते, वो फोटो असल में बहुत मशहूर हो गई, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी ने उस पर ऐसे लिख दिया. तो वैसे बहुत ही साधारण आदमी थे, घर में मतलब कपड़े एकदम सीधे साधे, हमारे यहाँ सभी ऐसे ही हैं, और वो कुछ खास तरह से थे. तो उनको कोई ध्यान नहीं आता था कि जूते फटे हैं क्या हैं. तो वो फोटो खींची हुई स्टूडियो की फ़ोटो है, लेकिन स्टूडियो की फ़ोटो में फटा हुआ जूता वो पहने बैठे हैं. और उनकी पत्नी शिवरानी देवी, मेरी दादी, दोनों बहुत शॉर्ट हाइट के थे, तो वो दोनों ही मतलब छोटे छोटे से, और जूता फटा, और कपड़े वपड़े कुछ मतलब कायदे के नहीं है कपड़े, बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए. तो वो फ़ोटो बहुत मशहूर उनके ऐसे की वजह से. जी जी जी. सारा ने कभी प्रेमचंद जी को नहीं देखा, मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं देखा. तो हम जब बात करते हैं कि जिन व्यक्ति को हमने नहीं देखा है, उनको हमने फिजिकली नहीं सुना है, उनके बारे में हम क्या और कितना गहराई से लिख सकते हैं. इनको जिनको कहते हैं सेकेंड हैंड मेमोरीज. इस किताब में रॉ अंबर का कवर ये है, और ये आपके घर की है जहाँ ये अभी भी रहती हैं, सारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो सेकेंड हैंड मेमोरीज को हम मतलब आपने कैसे उसको इस किताब में लिया, और उस दौरान आप जब बातें करते होंगे, आपको उनके बारे में पता चलता होगा कि वो कैसे थे, जैसे आपने एक किस्से सुनाए. तो एक हमारे जो हमने प्रेमचंद की एक इमेज देखी है, हम लोग में से सभी लोग, आई थिंक काफ़ी लोग उस इमेज को एकदम, आई थिंक अभी मेमोरी में एक सामने आ गया होगा विजुअल उसका. और मुझे हमेशा वो प्रेमचंद जी का एक वो टिपिकल फोटो ऐसा लगते हैं जैसे शेक्सपियर का चैंडॉस पोर्ट्रेट है, वो उस तरह का एक टिपिकली हमेशा एक इमेज सामने आता है. और उसके बारे में आपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी कुछ लाइंस लिखी हैं, उनकी आईब्राउज कैसी थी, एंड उनका एक तरह का एक व्यवहार कैसा था, उनका सोच कैसा था लिखने का.
और जो फिर आपके फादर में आया। तो ये सेकेंड हैंड मेमोरीज के बारे में आप बताएंगे, आपकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड मेमोरीज आई वुड से, उसमें आपने कैसे एक ट्रांसलेट। असल में जब मैंने ये किताब लिखना शुरू किया था तो इसमें ये प्रेमचंद जी होने ही नहीं वाले थे। ये बहुत अजीब सा लगेगा आप लोग को सुन के, मैंने ये किताब प्रेमचंद के बारे में नहीं लिखी थी। मैंने सोचा कि जो कि हुआ भी और अभी भी आज भी जैसे हो रहा है, मैंने सोचा कि घर के जितने लोग हैं जो और भी हैं और भी लैंग्वेज के इश्यूज हैं और चीज़ें हैं, तो वो सब इनविजिबल हो जाएंगे और ये किताब प्रेमचंद के बारे में हो जाएगी। तो मैंने इसको सोचा नहीं था, क्योंकि वो मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जैसे आप कह रही हो नहीं था। लेकिन फिर मेरे पब्लिशर्स ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, प्रेमचंद के बिना कैसे किताब हो सकती, तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है। तो फिर मैंने इसको लिखा, इस वाले चैप्टर को, एंसेस्टर इन द कबर्ड जो है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली टाइटल, एंसेस्टर इन द कबर्ड। तो वो जैसे मालूम है कि हमारे घर में ऐसे कोई इतने बड़े वो थे जिसको हम लोग में से किसी ने नहीं देखा था। मेरे पिता ने देखा था और मेरी दादी तो काफ़ी दिनों बाद तक जीवित रही, उन्होंने देखा था। घर के और जो उस जनरेशन के लोग थे उन्होंने देखा था, हम लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन उनके बारे में बातें हमेशा होती थी कि हर वक्त की वो कौन सी सब्जी उनका हाजमा बहुत ठीक नहीं रहता था तो उनके लिए अरबी मना थी, और कौन सी सब्जी उनके लिए पकती थी, कौन सी नहीं खाते थे। और मैथ में वो फेल हुए, 3 बार फेल हुए, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम फेल कर गए तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो जब हम लोग क्लास में कभी कभी मैथ में बहुत ख़राब नंबर आते थे तो हम लोग बड़े खुश होते थे कि देखो हम भी प्रेमचंद की तरह हैं, हमारे भी मैथ में ख़राब। तो ये इस तरह की चीज़ें भी होती थी। और फिर उनकी मतलब मेरी दादी तो बहुत दिनों तक जीवित थी, तो उन्होंने प्रेमचंद घर में अपनी जो उनकी एक बायोग्राफी लिखी है अपने पति के बारे में, उसमें से भी काफ़ी जानकारी मिली कि किस तरह का बचपन में वो क्या क्या खेल खेलते थे। एक बार किसी नाई का खेल, नाई वाला खेल होता है ना कि बाल काटेंगे एक दूसरे से, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपने किसी दोस्त का कान काट दिया, थोड़ा सा बाल काटते काटते थोड़ा सा कान छिल गया उसका। तो उसके बारे में बात होती थी कि किस तरह से उन्होंने किया। और कहानी भी उन्होंने लिखी थी कोई मजे में, that was the first कहानी that he wrote at the age of 13 and that also has a nice background to it. हाँ, उसमें असल में उनके मामा एक थे जो आया करते, रिश्ते के मामा थे, सगे मामा नहीं थे। तो वो आते थे घर में और ये मामा हर वक्त इनके पढ़ने पर बहुत एतराज़ करते थे कि नॉवल तुम क्यों पढ़ते रहते हो, ये कहानियाँ, ये क्या चीज़ है, अपनी वो किताबें पढ़ो, कोर्स की किताबें पढ़ो, ये सब। तो वो काफ़ी चिढ़ते थे उस मामा से कि हर वक्त ये टोका टोकी किया करते हैं मेरे साथ। तो इस मामा के इत्तेफाक से एक अफेयर होने लगा एक कोई दलित स्त्री थी उनके साथ, और मतलब उसको बड़ी चोरी छिपे वो उस तरह से कुछ हो रहा था उनका। और फिर कुछ मतलब अफेयर ऐसा कुछ अनप्लेजेंट टर्न उसका हो गया, तो वो मामा की कुछ पिटाई हुई, जो गांव के लोगों ने आके खूब पीटा उनको इसके बारे में। तो प्रेमचंद ने इसके बारे में से एक कहानी लिख डाली और वो कहानी उन्होंने सुनाई अपने दोस्तों को भी, कुछ हंसी मजाक हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह की कहानी मुझे नहीं लिखना चाहिए कि किसी के उस पर लेके आपने मजाक बनाया, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। मगर उन्होंने लिखा था और लेकिन वो कहानी गायब हो गई, वहीं रखी थी। तो उन मामा ने पढ़ा होगा, उन्होंने उठा के फेंक दिया, कुछ कर दिया, तो कहानी वो गायब है, कहीं है नहीं, अब मिली नहीं। तो प्रेमचंद जी का खुद के शब्द आपने यहाँ पे लिखे हैं उनकी खुद की राइटिंग के बारे में, जब वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या लिख लूँगा इस दुनिया के बारे में। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक ये लिखा, आपने लिखा है उनके प्रेमचंद जी के शब्दों में, आई एम लाइक अ ग्रास रीड swaying by the river and the wind makes sound within me. My story is the story of the wind. हाँ, ये उन्होंने असल में तो कहा था, क्योंकि किसी ने पूछा होगा कि आपका लेखन किस चीज़ के बारे में है, क्या है, आप क्या लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ज़माने के बारे में लिखते थे। उनका तो पूरा हिस्ट्री का वो जो है कि जो एक तरह से वो हिस्ट्री वॉज शेपिंग हिम एंड ही वॉज शेपिंग हिस्ट्री, कि वो और उनकी पत्नी दोनों जो मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे उन दिनों, वो खुद करके दिखाते थे। जैसे उन्होंने, जो मेरी दादी थी, शी वॉज अ विडो, चाइल्ड विडो, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ एक विडो से करूँगा। तो एक विडो री मैरिज वाला जो मूवमेंट था उसको उन्होंने अपने जीवन में उसको करके दिखाया। इस तरह से और भी चीज़ें, और मतलब बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स ज्वाइन करते थे, शिवरानी देवी भी करती थी। तो उनका जीवन जो था डेडिकेटेड था टू कैप्चरिंग व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम, ही वाज शेपिंग हिस्ट्री।
तो वही है ना कि वो जो कहानी सुन रहे हैं वो कहते हैं मेरी कोई कहानी नहीं है, मुझे जो हवा पर कहानी सुनाई देती है वो मेरे, ही वॉज लाइक अ मीडियम कि मेरे बीच से वो कहानी से निकलती है, लेकिन मेरी कहानी नहीं है। ब्यूटीफुल थॉट। आपने शिवरानी देवी के बारे में बात की। दीज आर द वीमेन राइटिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, और उस समय एक महिला का लिखना और कुछ विषय वस्तु ऐसी हो जो पाठकों को समझ में आए और उसका एप्रिसिएशन हो। तो शिवरानी देवी और फिर बाद में योर मदर जहरा साहिबा, उनके लेखन में आपको क्या समानताएं मिलती हैं, सिमिलैरिटीज हैं, और साथ ही were there any different in terms of themes from the stories or the literature being written by the men during those times, or maybe the family itself? For example, मेरी माँ और मेरी दादी दोनों बिल्कुल अलग अलग समय पर लिख रही थी। मेरी दादी लिख रही थी उस समय पर ये बहुत सारी चीज़ें जो सोशल में ऐसी उथल पुथल बहुत हो रही थी, और वो काफ़ी कुछ एक तरह से वो प्रेमचंद की पत्नी होने की वजह से भी एक कुछ चीज़ों से बाध्य थी, मुझे लगता है कि इनके बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ जैसे वो साइकोलॉजिकल वाली भी वो लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर जैसे ऑलमोस्ट कि मतलब कैरेक्टर्स जो हैं वो पर्सोनिफाई करते हैं, कोई है कि वो ऑनेस्टी है, कोई डिग्निटी है, कोई जस्टिस है, इस तरह से आप उनको कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में वो कैरेक्टर्स मतलब अपना एक तरह से मैसेज अपना कन्वे करके वो कहानी से गायब हो जाते हैं। तो उस तरह की कहानियाँ वो मैसेज वाले मोड में थी बहुत। योद्धा स्त्री और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग। उनको लोग कहते थे प्रेमचंद की डिक्टेटर हैं, वो छोटी सी थी और बहुत मतलब भड़काती थी प्रेमचंद को। तो वो पान लेके आए, गलत वाला पान ले आए तो वापस जाओ दूसरा लेके आओ, इस टाइप का काफ़ी उनको वो करती थी, और बहुत सूझबूझ वाली और बहुत ही राजनीतिक तरह की औरत थी वो। तो वो बहुत ही चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करती थी, और जो जो चीज़ें वो करते थे, तो उन्होंने खुद कहा प्रेमचंद ने अपनी वाइफ के बारे में कि हम लोग दोनों एक नाव के साथी, एक ही नाव में बैठ के हम उनका मतलब चारों तरफ का वो देख रहे हैं, जो जो हो रहा है उसको हम समझ रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो जी, सो मुंशी प्रेमचंद, शिवरानी देवी, इनके बारे में आपने बताया। श्रीपत राय, योर फादर, हाउ वाज ही डिफरेंट, एंड उनका एसोसिएशन, आपका बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आपकी सारी मेमोरीज फर्स्ट हैंड हैं, और उनका जो चैप्टर जब आप लिखते हैं उसमें, तो वो कहते हैं कि यू विल बी द कैथरीन मैन्सफील्ड ऑफ हिंदी। ये वाला उनका एक वाक्य जो था वो आपने अंत तक अपनी, आई थिंक लास्ट पेज ऑफ योर बुक, आई थिंक इट कंटिन्यूज टिल देन। उनका जो लेखन था और उनका एक जो लाइफस्टाइल था, वो आपको बनाने में जो आज आप हैं उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? असल में मेरे पिता फिक्शन राइटर नहीं थे। उन्होंने 2-3 कहानियाँ लिखी, लेकिन वो कभी मतलब फिक्शन राइटर की तरह से उनका एक पर्सनैलिटी नहीं बनी। वो आलोचक थे और पेंटर थे, पब्लिशर थे। एक कहानी नामक पत्रिका जो थी उस ज़माने में, जो बंद हो गई 70s तक छपी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, उसको वो छापते थे। उसमें सब बड़े बड़े लेखक, जितने भी बड़े लेखक मशहूर आज जो हैं, जिनको हम मानते हैं कि अरे अज्ञे हो गए, निर्मल वर्मा हो गए, मतलब कृष्णा सोपती, जो भी आप नाम ले लें, सब उस वहीं से शुरू हुए थे। वो कहानी में छपके ही सब, ज्योत्सना मिलन जी हमारी भोपाल की, तो सब लोग उसमें काफ़ी छपे भी हैं और सब मतलब उसको जानते थे। तो एक तरह से कहानी के माध्यम से वो एक रीडर को शेप कर रहे थे कि रीडर किस तरह का लिटरेचर पसंद करेगा। तो अच्छी चीज़ें उसमें छापते थे, बहुत अच्छी कहानियाँ रहती थी, तो उन कहानियों को पढ़ के रीडर का टेस्ट डेवलप होता है। तो वो उनका बहुत बड़ा रोल था जो हिंदी के लिए उन्होंने बहुत किया, वो कंट्रीब्यूशन उनका ये था। और प्रकाशक तो थे ही, और पेंटर, उनकी आइडेंटिटी जो पेंटर वाली थी, वो मतलब करीब 20 साल तक, अपनी जीवन की 20 साल तक उन्होंने पेंट किया। जुनून जैसा था पेंट करने का, और फिर उसके बाद एकदम से उन्होंने छोड़ भी दिया, पता नहीं, कुछ बड़े थोड़े एनिग्मेटिक से थे। You call him a man of nomadic creative impulses. हाँ, वही चीज़ है। Because he's switched his creative, कभी वो ट्रांसलेशन भी किए उन्होंने, क्रिटिक तो थे ही, कहानियाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट की 2-3, और पेंटिंग की, तो मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों में उनका एक दखल रहता था।
तो इस वजह से मैंने कहा कि ट्रैवल करता था, उनकी जो क्रिएटिव अर्ज यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सारा जी, आप कुछ पढ़ना चाह, एनी पैसेज दैट यू वुड लाइक टू रीड फ्रॉम द बुक, और जो भी आपकी चॉइस का? हाँ, क्यों नहीं। सारा जब तक सेलेक्ट कर रही हैं, लेट मी शेयर विद यू दैट दिस बुक इज बहुत कैंडिडली लिखा गया है इस किताब को। शी इज बीइंग वेरी वेरी कैंडिड, चाहे वो लाइफ प्रेमचंद जी की हो, ग्रैंड मदर की, अबाउट हर फादर, इवन अबाउट हर ब्रदर्स, so movingly written and without any hesitation। और ये मुझे ऐसा लगता है जो इस जॉनर है मेमोयर, इसका एक बहुत ही कहना चाहिए एक लिटमस टेस्ट जैसा होता है शायद, कि आप कितना सच्चाई के साथ अपने पाठकों तक जो आपने ये बीड़ा उठाया है कि मैं एक मेमोयर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, वो आप उसको उसके साथ जस्टिस करेंगे। So Sara, this is congratulations once again for this beautifully written book, और जो बहुत candidly जो मैंने बताया है, and I wanted to share this with the audience, please. क्योंकि ये सेशन का शीर्षक है रिमेम्बरिंग प्रेमचंद, तो मैंने फिर प्रेमचंद जी वाला ही चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने सोचा ठीक रहेगा। तो ये जो इनके बारे में ऐसे है प्रेमचंद जी के बारे में, उसका शीर्षक है द एंसेस्टर इन द कबर्ड। मैं पढ़ रही हूँ। He was the unbelievable figure in the family cupboard that no one had seen. No one except for my father, who was 20 years old when Premchand died, my uncle who was then 15, and my grandmother who'd been married to him for 30 years and outlived him by 40. He'd already been dead 12 years when my parents got married, so there was no question of my meeting him. Yet I saw him everywhere. The air of our house was permeated with my grandfather's presence. His life of commitment to the underdog, his willingness for personal sacrifice for the larger good, and his ideals of all of these were woven into the texture of our lives, even if no one talked about him. But we did talk about him. For instance, when my siblings and I complained about the power cuts that were frequent in my childhood, especially during exam time, we'd be told to think of him, who read and even wrote by the light of a debris, a small oil lamp. Swatting over our textbooks, we'd think with envy of what we'd heard about his first school, a madrasa in Lalpur, half a kilometer away from Lamahi. The Maulvi, with his passion for birds, had bulbuls, menas and munias in cages that hung everywhere in the school. The students would be sent out to gather worms for the birds, and these outings turned into nature walks. Walking in hushed silence down the stone corridors of the convent school in Allahabad where I studied, my mind would wander. My grandfather's school sounded much more fun than my own. If one of us failed a maths test, we'd be scolded at home, but we knew it was a mock scolding. For beneath it all, there was an unstated pride, for his math had been weak too. In fact, he failed to clear a qualifying entrance exam for college because he was stumped by the maths test. Even in his shortcomings, he was a role model that we proudly emulated. He'd be remembered when arvi or baigan was cooked, for these were some of the vegetables he'd been advised not to eat because of his poor digestion. We'd laugh at stories about his childhood pranks, for instance, the time when he had nicked a friend's ear while giving him a haircut in a game in which they were pretend barbers. Or there was the incident where he and his cousin had stolen a rupee. The money had come in from the sale of hemp and had been kept in a niche high on the wall. They stole the money but didn't know how to spend it. Naturally, they couldn't get away with it. He later wrote a story about the incident called Chori, the theft. Coming to the title,
raw umber. Raw umber is the color, and Sara mentioned that her father, Shripat Rai, was a painter. वो मेरी भी बहुत प्रिय कहानी है, मेरी फेवरेट कहानी है वो। तो उसमें वो कहाँ वो पास तो नहीं होते हैं, कहानी में तो नहीं पास हुए, तो कहानी नहीं खत्म हो जाती है। वो कोई असली कौन थे, वो कोई कैरेक्टर ऐसे तो उन्होंने बनाया नहीं होगा कि कोई असली उस पर बना दिया, लेकिन उस कहानी में तो पास नहीं होते, वो तो पतंग के पीछे भागते हैं। अच्छा, तो मतलब ये असली कहानी नहीं है? असली कहानी नहीं। अच्छा। So Sara, you can also tell us about, you know, the way you have been influenced by stories like these in your short stories. I think it's the language that is more that you pick up. I mean, short stories तो मेरी तो कहानियाँ कहीं आती नहीं है, मेरा क्या उनके साथ वो है, लेकिन जो एक भाषा की एक आदत है, जो भाषा की आदत बोलने की और पढ़ने की, और जो आपने जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, तो वो भाषा आ जाती है और एक सेंसिबिलिटी आ जाती है, आपकी मानसिकता हो जाती है उस तरह की, एक खास तरह की। तो कहानी का तो कोई मेरा उनसे है नहीं कुछ कि ऐसा कि आपने ऐसा लिखा, उन्होंने, मैं तो हुई नहीं उस ट्रेनिंग में, तो मेरा कहाँ जिक्र है वहाँ, तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं। तो लेकिन भाषा ज़रूर, भाषा में ज़रूर कुछ ज़रूर पकड़ा होगा मैंने। हेलो सारा मैम, आई एम कीर्ति चौधरी, आरजे इन विविध भारती भोपाल, और मैंने भी प्रेमचंद जी को काफ़ी पढ़ा है। अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली में आपकी मदर, आपके फादर, आप सब राइटर्स हैं, तो प्रेमचंद जी चूँकि सोशल अवेयरनेस या सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के बारे में ज़्यादा लिखते थे, तो उसका इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ पर क्या पड़ा? मतलब आपकी जो राइटिंग है वो उस पर कितना फोकस है? नहीं, एक वो सोशल इश्यूज, असल में मैंने तो अपने दादा को देखा नहीं था, मैंने कहानियाँ पढ़ी। वही मैं कह रही हूँ, एक सेंसिबिलिटी की बात होती, तो मुझे भी जैसे हाशिए पर लोग जो हैं, हाशिए पर रहने वाले लोगों के बारे में मैं लिखती हूँ। उसका मतलब हाशिए से ये मतलब नहीं कि कोई बहुत गरीब आदमी है वही हाशिए पर हो सकता है, उसमें हर तरह का, जैसे कोई साइकोलॉजिकल हो सकता है, या कोई मतलब एक मैंने कहानी एक गे कपल के बारे में लिखी है, वो अपने को हाशिए पर महसूस करता है। तो इस तरह से हाशिए वाले जो फ्रिंज कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं लिखना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है उसका एक बदला हुआ रूप है जो उन्होंने लिखा। तो अब वो सोसाइटी बिल्कुल बहुत कुछ बदल चुकी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्रैगमेंटेड सोसाइटी हमारी हो गई है, तो उस तरह का हम सीधा शायद मैसेज ना कर पाएँ। तो वो बदलता रहता है, साहित्य का एक दौर है, फिर दूसरा दौर है, और एक ट्रेडिशन हमारा बनता चलता है, तो वो हमारे ट्रेडिशन के बिल्कुल हिस्सा है और वहीं से शुरू होता है, और उसके आगे बहुत कुछ बदला है साहित्य में। आप यहाँ के साहित्य के काफ़ी लोग बैठे हैं जो जानते हैं। And the society, all of everything has become so complex. हाँ। AI driven. I'm Rashmi Bhargav. I just wanted to check. You studied modern history. Yes. So were you never inclined towards writing on history or something? No, unfortunately, I didn't. Actually, I would now like to. I wish I could do that MA now, because then I wanted to study literature, and I did another MA because I couldn't get literature at that point. The cutoff was too high. Even though my marks I thought were quite good, but I still didn't get admission. So I studied literature, and then I studied later. And first I did history, and of course I enjoy history now very much, and I would love to do an MA and understand everything about it. But I never wanted to be an academic. It didn't make sense to me. So can we take a last question and then? मैम नमस्ते, मैं अमन राज श्रीवास्तव मूलतः झारखंड से। मैम कई बार ऐसा हुआ करता है कि जब गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जाया करते हैं नानी घर, दादियों से अम्मा कहानी सुनाया करती थी, तो कुछ कहानियाँ पूरी गर्मी की छुट्टियाँ चलती थी। अभी इस पे अभी क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। क्या आपका बचपन भी ऐसे ही था कि जब आप कहानियाँ सुना करते थे, जब आपकी दादी प्रेमचंद की कहानियाँ सुनाया करती थी, तो क्या वो कहानी जो हमने पढ़ा है और आपके लिए क्या कभी कहानी आगे बढ़ पाई? जैसे अभी सर ने पूछा कि बड़े भैया का बाद में क्या हुआ, तो क्या ऐसी कुछ कहानी थी जो दादी ने बताई अपने तरीके से आप प्रेमचंद? दादी असल में कुछ अपने पति के बारे में, उनके बचपन के बारे में मैंने जैसे कहा वो बताती थी, कुछ अपने वो राजनीतिक उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थी, मतलब प्रोटेस्ट वो करना औरतों का, उन्होंने बहुत बड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन निकाला था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो ये सब उसकी बातें करती थी। और नानी मेरी तो फोक स्टोरीज ज़्यादा सुनाती थी, शहजादे शहजादी कहानी, फिर वो अल्ले बल्ले फत्ते हुआ करते क्या उनकी कहानी,
फिर अफीमची एक बड़ा ही हिलेरियस कैरेक्टर था, अफीमची की कहानी। तो इस तरह की कहानियाँ वो बहुत सुनाती थी। फिर वो तोता मैना की कहानियाँ कि तो वो सुनते रहते हैं, फिर आपस में बात करते हैं, कोई जो लोग बात कर रहे हैं तोता सुन लेता है, मैना सुन लेती है, फिर वो जाके क्या करते हैं, तो उसका वहाँ से शुरू होती थी। तो इस तरह की कहानियाँ हमको ज़्यादा सुनाई जाती थी। तो ये जो कहानियों में लिखी गई हैं ये कहानियाँ उस तरह से नहीं सुनाई जाती थी। और ये जो कहानियाँ हम लिखते हैं कोई असली कैरेक्टर्स नहीं होते। साइन के बस करो हो गया, बहुत बोर कर लिया। No, I am giving a rather brutal check on time. So I think that brings us to the closure of this session. Thank you so much, Sarah. And yeah, what a lovely book it is. I would recommend that you read the book because it is, reading about the legend and what made legends in the family, and of course the writings. And of course the writings that we are all acquainted with. We have read. अभी जब बात हो रही थी कि हम बचपन से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं. From fantasy जो सारा ने कहानियाँ अपने दादी से सुनी, beginning from fantasy to what kind of reality we read in written stories. So thanks for these lovely nuggets from the lives of many people in our family, and thanks for sharing your views, and we wish you all the best, and thank you BLF for giving us this opportunity. Thank you Gopal, thank you all of you here for coming and listening to this talk. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was really a true and interesting session that was so truthful. आपने इतने candidly सब कुछ बताया अपने परिवार के बारे में, हमारे आइडल मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में. It was so candid. हमको हमने उनकी stories पढ़ी हैं पर आज हमने उनकी story सुनी, तो it was great. उनको खाने में क्या पसंद है से लेके everything we got to know. So thank you so much, ma'am, and thank you moderator ma'am for this exciting conversation. Now I would like to request Richa Sinha ma'am, a founding member of the society, to please come on the dais and present the memento to our guests. The memento we have here, it's a painting made by the senior most Gond artist Ram Singh Urveti, a distinguished Gond artist inspired by ancient tales. His art reflects a motif rooted in timeless stories. His paintings depict god-like structures in his village. With vibrant strokes, Ram Singh Ji brings life to swaying trees and mythical forms. Thank you so much. And I have these lines before me which describes this color and which is so integral to the whole idea of the book, of the lives that she has written here. He says, raw umber, he said, the father, was a natural brown or reddish-brown earth pigment that he often used, and the name came from the Latin word umbra, which meant shadow. With dusk falling outside the window and muting colors, he told me about light fastness. This was the property that determined how resistant a pigment was to fading. I think we can relate it to the legacy of Premchand and the family. This was the property that determined how resistant a pigment was to fading. Some colors were transient and faded within a few months, while others had greater permanence. And to continue here, she says, some lives faded away while others survived in public memory. So this is a beautifully way to connect. I could find the connection of the title to the entire work. My next question to you
Sarah on language. Now language, it's very interesting, and you put it very interestingly. Again, every time I feel like quoting from the text. Language, because Sarah has been writing in Hindi, translating of course, but this is, as I mentioned, this is the first original work in English. When Sarah, you were growing up, you were told by your father that only Hindi should be used. Is it? Am I right? Well, actually, yeah, and I was trying to decide, because I went to an English medium school. At home we spoke Urdu and Hindustani we spoke. And other people around us were speaking Awadhi, because in Allahabad Awadhi is spoken. My grandmother, my dadi used to speak Bhojpuri because she came from, my grandfather also, and both of them Bhojpuri, but my grandmother herself came from an Awadhi speaking town, but she used to speak Bhojpuri. So there were all these languages that were going on in my head, and in fact, all of us who are sitting here today, all of us know 2 or 3 languages. घर पे कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, कहीं से और कोई आया है, आपके घर में कोई दूर का रिश्ते का कोई आया, वो कुछ और बोल रहा है. बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे मन में चलती रहती हैं हर समय. तो मेरे मन में कुछ कंफ्यूजन था कि किस भाषा में लिखना चाहिए. मैं उसको इसी से मैंने अनुवाद शुरू में बहुत सारे कर डाले कि क्या ये मेरी भाषा हो सकती है, कि अंग्रेजी हो सकती है, कि हिंदी, क्या लिखना. तो मेरे पिता की जो वो थी, कहना था कि जो ओरिजिनल राइटिंग, आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, वो सिर्फ आपकी मातृभाषा में हो सकती है और होना चाहिए. तो मेरे दिमाग में ये बात रह गई. तो मैंने फिर सोचा कि मुझे भी हिंदी में ही लिखना चाहिए. तो मैंने शुरू का फिर, और मुझे ये भी लगा कि हिंदी का दायरा, उसकी पहुंच ज़्यादा है. अंग्रेज़ी जो है वो कुछ घरों तक, एक मध्य वर्ग तक उसका वो दायरा सीमित है. और हिंदी आप बहुत दूर तक मतलब आपको पढ़ा जाएगा. आप दूसरे लोगों के घर में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आप अपना जीवन एक भाषा में जिए और लिखें दूसरे में, ये होता नहीं है संभव. तो इस वजह से मैंने भी हिंदी में लिखना शुरू किया. तो मेरा जितना भी जो मैंने लिखा है, जो कहानियाँ, उपन्यास वगैरह लिखा है, ये सब मेरा हिंदी में है. ये मेमोर, लेकिन इसमें भी मेरे दिमाग में बार बार ये बात आती रही कि मैं इसको अंग्रेज़ी में क्यों लिख रही हूँ. तो मुझे लग रहा कि शायद अंग्रेज़ी जो है वो आपको कॉन्सेप्ट को फ्रेम करने के लिए एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझको लगी. ये अपने बारे में, या अपने मेरे लैंग्वेज के साथ मेरा क्या स्ट्रगल रहा है उसके बारे में लिखने के लिए अंग्रेज़ी मुझे ज़्यादा सही लगी. हिंदुस्तानी, फिर उर्दू और हिंदी. हाँ, ये आपकी हिंदुस्तानी होगी. हाँ, हिंदुस्तानी. मैं अपने को हिंदुस्तानी लेखक कहती हूँ. मैं हिंदी, क्योंकि मेरी भाषा दोनों का मिक्स है, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. तो ये पॉलिटिकल पॉइंट भी है. हिंदुस्तानी तो हम जब भी बात करते हैं, हमारे कॉन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में हिंदी होती है, उर्दू का भी मिक्सचर होता है, इंग्लिश होता है. इट्स हिंदुस्तानी, इट इज इंग्लिश, whatever we might call it, but yes, you are right. And और आपके ये जो आपने बात कही है, जो आपके father, who insisted on, not insisted, I would say, but yes, said that his suggestion was that you should write in Hindi. So अब आप हाँ, आपने मेमोयर के बारे में बताया. आपका मन है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का खुद? नहीं, वो हो रहा है ट्रांसलेशन. जब हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ. अच्छा, आप नहीं कर रहे, प्रकाशन लोग करा रहे हैं. वो लगभग कंप्लीट है. वो शायद मार्च तक हो जाएगा. मुझको ये कहा है उन्होंने कि मार्च में शायद तैयार होगा. एक आखिरी बात करेंगे, फिर हम लोग ऑडियंस पे जाएंगे. ये भी आपने कहा है, रीडिंग लीड्स इनटू राइटिंग एंड वाइस वर्सा. इसको आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए. हाँ, मतलब जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका जो एक सेंसिबिलिटी है, एक मानसिकता है आपकी कल्पना शक्ति है, सब कुछ आप जो पढ़ते हैं उससे बहुत कुछ एक तरह से वो रंग पकड़ती है वहाँ से. तो जब आप लिखने बैठते हैं तो वो चीज़ जो आपकी इमेजिनेशन में चल रही है, उन किताबों के बारे में जो आपने पढ़ा है, आपकी सेंसिबिलिटी शेप हो चुकी है जो आपने पढ़ा है उससे और अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास से, सब चीज़ का एक मिला जुला एक मिश्रण होता है जब आप लिखने बैठते हैं, एक मेमोरी का. और मुझे तो लगता है मेमोरी भी है, वो सिर्फ फिजिकल मेमोरी जैसे आप याद कर रहे हैं वो नहीं है. हर चीज़ की, आपका हाथ है उसकी अपनी मेमोरी की, मैंने ये बोतल ऐसे उठाई थी. आपका पैर है, कहीं जाना उसको याद है. आपकी आँख ने देखा, उसको आँख को याद है, कुछ सुना. तो मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी काइंड्स. एक फिजिकल मेमोरी होती है और एक मेंटल और इमेजिनेटिव मेमोरी होती है. तो जब आप लिखने बैठते हैं तो सारी चीज़ों का एक साथ एक समझिए प्ले होता है आपके लेखन में, फिर वो चीज़ें आती हैं.
Memory mixed with some kind of imagination, I believe. और ये मैं एक मार्सेल प्राउस्ट को आपने काफ़ी पढ़ा है और इन्फ्लुएंस हुई हैं. So there is this chapter which she is titled The House of Fiction. पूरा this House of Fiction. उसको उसके शुरू में इन्होंने प्राउस्ट को कोट किया and which is very relevant, and I again quote from that. When one is endowed with imagination, as you are, one possesses all the landscapes one has loved. And this is the inalienable treasure of the heart. But really, a home where you have memories of your family, a home which you cannot see except through reveries which recede into the distant past, is a very moving thing. It's so beautifully, associated with the tenor of the book. और इससे आपको एक जो memories को लेके आपने जो past में जो अभी ये किताब आई है, so how do you see your present, आपकी जो life है या आप जो आसपास देख रहे हैं, how do you encapsulate them and make way for making memories? Don't make memories, they just happen. I can't make any memories. There are some things that you see, they stay in your mind. I mean, it is not a conscious process. It is something that is going on all the time. Writing, in fact, the act of writing, I think, started when starts when you are 2 or 3 years old, and whatever is happening around is going into your mind. Like the mind is like a computer. It's all this data is going into the mind, and when you sit down to write, many things which you may actually, when you are trying to think, you won't remember it. But when you start writing, all these things start coming back to you. So it's a bit like that. So can we now open the session for the audience? Any questions? Yes. I want to ask Sarah that are you writing any book in English for the future? I've started something. Hasn't gone very far yet. So maybe it will finish. Then I'll have a book. Can't say, it's too early to tell. But I have started something. सारा जी नमस्कार. मैं कनल श्रीवास्तव हूँ और मुंशी प्रेमचंद जी को थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने भी. बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी कहानियाँ बड़ा मज़ा आता था. मतलब फील कर सकते थे कि वो जो लिखना चाह रहे हैं, वो जो कह रहे थे, ये जो कहना चाहते थे, वो आम जनता तक पहुँचा पाते थे. एक कहानी पढ़ी थी मैंने, इनफैक्ट मेरे साथ में मेरी बेटी आई हुई है छोटी, शी इज़ इन 9th नाउ. शायद 1-2 साल पहले इसको हमने एक कहानी पढ़ के सुनाई थी, बड़े भाई साहब. तो मैं जस्ट क्यूरियस हूँ कि बड़े भाई साहब का क्या हुआ फिर फाइनली, वो पास हो पाए कि नहीं हो पाए.